Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe at your homes, and our today's topic will be the poem Spring and Fall. It was also written by J.M. Hopkins, and J.M. Hopkins की जो ये पोम है स्प्रिंग एंड फॉल, उसका सबटाइटल आप लिखिए टू यंग चाइल्ड. ठीक है, नीचे जो आप देखेंगे, आप जस्ट इफ यू विल गूगल इट और आप देखेंगे कि इसका और अब मैं ऊपर भी आप लोगों को जो है आपकी स्क्रीन पे भी आप लोग इस पोम को देख सकते हैं. एंड बिफोर बिगनिंग विद द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोम, आई विल रिसाइट द पोम फॉर यू. सो हैव अ लुक ऑन दिस पोम. ओके, स्प्रिंग एंड फॉल by J.M. Hopkins. To young child, Margaret, are you grieving over golden grove unleaving? Leaves like the things of man, you with your fresh thoughts care for can you? Ah, as the heart grows older, it will come to such sights colder, by and by, nor spare a sigh. Though worlds of vanwood leaf may lie, and yet you will weep and know why. Now no matter, child, the name, sorrow's springs are the same. Now mouth had no nor mind expressed what heart heard of ghost guessed. It is the blight man was born for. It is Margaret you mourn for. What a beautiful poem, and it is very important from the point of view of reference to context for the UG and PG students. And let's have a look on its critical appreciation or critical analysis of the poem. Hopkins is addressing this poem to a imaginary young girl child. इमेजिनरी है ये, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. देयर इज कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऐसी लड़की जो है, यंग चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ये इमेजिनरी गर्ल है. ओके, इमेजिनरी, इट्स इमेजिनरी गर्ल चाइल्ड. ओके, द टाइटल स्प्रिंग एंड फॉल नॉट ओनली सजेस्ट द सीजन स्प्रिंग and autumn, but refers to the contrast between innocence and maturity. यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो तो हमें सबको पता है, स्प्रिंग सीजन है, और जो फॉल है वो ऑटम के लिए यूज हुआ है. और ना सिर्फ ये स्प्रिंग और ऑटम के लिए यूज हुआ है, इट इज ऑल्सो फॉर द इनोसेंस एंड मेच्योरिटी. स्प्रिंग जो है वो क्या है, हमारी इनोसेंस है, और जो हमारा ऑटम है वो हमारा maturity है. As the spring represents kindness and innocence, on the other hand fall is the symbol of maturity, जो कि मैंने आपको बता दिया है. In the first line of the poem, the poet asks the young child Margaret that she is grieving or lamenting over falling of the golden colored leaves from the trees, as the leaves have turned yellow and golden and are shedding as the winter season is approaching. Here the golden grove is the symbol of purity also. यहाँ पे जो golden grove है वो symbol है purity की भी. ठीक है. Then the poet says that Margaret, you with your innocent and fresh thoughts cares for the leaves in the same way as one cares for the things of man, which are the problems of the human beings. Things of man जो है वो यहाँ पे क्या है, things of man, you can underline this line. ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो होती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इन देयर लाइफ्स. ओके, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज शी इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड मेच्योर, शी विल बिकम indifferent and hard-hearted to such natural sights. अभी वो छोटी है. पोइट ये कह रहे हैं, जीएम हॉपकिंस ये कह रहे हैं कि अभी शी इज जस्ट अ चाइल्ड, इसलिए वो क्या हो रही है अभी बहुत ज्यादा, यू कैन से कि अभी वो बहुत इनोसेंट है तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही है. लेकिन एज शी इज गोइंग टू बी ग्रोन, एज शी इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस, मेच्योर, शी विल नॉट केयर फॉर सच थिंग्स. ऐसी चीजों के लिए वो केयर नहीं करेगी जब वो मेच्योर हो जाएगी. As the time is going to proceed further, she will not at all bother for all these natural phenomena, and she will remain unconcerned even though when all the forest or woods will be turned pale and lied in her feet. जैसे वो बड़ी होगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेचुरल फेनोमेनन से, नेचर से,
एज वी ऑल नो कि हम जब छोटे होते हैं तो हम नेचर को लेके काफी कंसर्न होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम काफी इग्नोरेंट होते जाते हैं हमारे नेचर को लेके, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है इस चीज पे एम्फेसिस दे रहे हैं। फर्दर द पोएट सेज दैट she will weep in her future also when she will be grown, but her reason wailing then will different from this. The cause of her weeping will be the human moralities, okay. In the next lines, the poet says that the name doesn't matter, child, because the sorrow springs are the same. It doesn't matter, the name doesn't matter. फिर वो बोल रहे हैं कि नेम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉरोज हो या स्प्रिंग्स हो सब सेम है. It means that all the pleasure and despair in this world are the same. यानी कि कहने का मतलब है सॉरो और स्प्रिंग क्यों सेम है, क्योंकि सारे जितने भी प्लेजर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेजर्स हैं और जितने भी हमारे सॉरोज हैं, they are all same. वो सब सेम है. Then the poet says that as Margaret is a small child, she has no word as she is unable to express her feelings and she don't have any understanding now. अभी कोई उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी उसे समझ नहीं है. This is the reason she is crying over the over the falling of the leaves. इसलिए वो रो रही है. Then the poet says that her heart had heard and her spirit or inner soul has guessed what she is not able to express to others. बोल रहे though she is not able to express her feelings to others by her voice, लेकिन उसकी जो यू कैन से यहाँ पे जो घोस्ट टर्म यूज हुआ है वो सोल के लिए यूज हुआ है, लेकिन जो चीज वो रियलाइज कर रही है, मतलब जो चीज वो बोल नहीं पा रही है, उसकी सोल ने उस चीज को सुन लिया है, सोल रियलाइज कर रही है व्हाट शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस टू others. Actually every man is born for the suffering and human morality. हर बंदा जो है वो जन्मा है सफरिंग के लिए और मोरालिटी के लिए. In this line the poet is giving the biblical reference through which he wants to convey the message that every single person has to die one day. यहाँ पे biblical reference यूज हुआ है. जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. और तो फिर हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस यूज हुआ है कि नोबडी इज गोइंग टू लिव फॉर एवर. कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाला है. एवरीबडी हैज टू डाई. ठीक है. इन द लास्ट लाइन द पोएट कंक्लूड्स दैट एक्चुअली मार्गरेट इज नॉट क्राइंग फॉर द लीव्स बट फॉर हर ओन मोर्टैलिटी. As her inner soul has guessed the fact that she is also going to die. अभी उसकी सोल को जो है, मार्गरेट की सोल को ये रियलाइज हो गया है कि वन डे शी इज ऑल्सो गोइंग टू डाई, शी इज ऑल्सो गोइंग टू पेरिश. तो इसलिए उसकी सोल जो है उसने जब रियलाइज कर ली ये चीज, तो इसलिए मार्गरेट को रोना आ रहा है. ठीक है. Hence the main idea of this poem is that everyone must have to die one day, as it is a natural fact. Every single thing which exists on the earth must have to leave sooner or later. चाहे वो आज जाए, चल वो कल जाए, लेकिन जाना सबको है. That is the main idea of this poem. Okay. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं पोएटिक डिवाइसेस की जो यूज हुए हैं या फिर पोएटिक यू कैन से पोएटिक क्वालिटीज जो यूज हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी रेटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे यूज हुआ है. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोम इज रेटोरिकल क्वेश्चन. मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव एंड लीविंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास में. ठीक है. और नेक्स्ट जो है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन की मैंने बताया था आपको, एलिट्रेशन की स्पेलिंग आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. और यहाँ पे एलिट्रेशन जो है उसका यूज हुआ है सॉरोज, स्प्रिंग्स, घोस्ट, गेस्ट. यहाँ पे जो है ये यूज हुआ है, तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन है. और एनफ मैं कहूँ स्प्रंग रिदम स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूं तो जो है स्प्रंग रिदम यूज हुआ है. स्प्रंग रिदम खुद ने डेवलप किया था उसने, और स्प्रंग रिदम भी यूज हुआ है इस पोम में. बिब्लिकल रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है एक्सप्लेनेशन में कि बिब्लिकल रेफरेंस जो है उसका वो दिया हुआ है इस पोम में पोएट ने. और थीमेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पोम इज सोनेट. थीमेटिक इम्प्लीकेशन जो है ना इस पोम की वो है सोनेट है. ठीक है. यहाँ पे पन का यूज हुआ है, यूज ऑफ पन लिखिए PUN, पन का यूज हुआ है. देयर इज ऑल्सो यूज ऑफ पन इन दिस पोम. सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम. ये क्या है, पन का यूज हुआ है यहाँ पे. पोएटिक डिवाइस है पन, PUN. इसका यहाँ पे जो है पोएट ने यूज किया है, जिम हॉपकिंस ने.
और वो लाइन में रिपीट कर देती हूँ दोबारा. Sorrow springs are the same in inverted commas. And so this is the critical appreciation of the poem Spring and Fall. And we will meet in the next class. Till then, take care and stay healthy. And do like and subscribe my YouTube channel English with Rimchim Kinsaria. Thank you so much for watching this video.